Good morning, students of class 9. Today we are going to start our very new chapter number 14, statistics. So in this video we are going to learn some basic concepts, or you can say some basic terms and terminologies that we are going to use in this chapter. So you first need to know that what is the meaning of statistics. Students, statistics is that branch of mathematics that deals with the presentation and analysis of data. Suppose we are having a data and we have to analyze something about that data, then we use the particular statistics over that data. Now the basic term, as you can see, the first one is the primary data. Actually students, the primary data is that data that you are collected for the very first time. It can be collected by a statistical investigator or with the help of his worker. That is called the primary data. So the data जो कि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे या फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा जो है वो कैसे बनता है, जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन आप लगाते हैं, ठीक है, एंड सेकेंडरी डेटा उसको बनाते हैं या दूसरी बार उससे आप कुछ एनालाइज करके कुछ उसमें नया क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. सो दीज आर द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अ पर्सन और अ सोसाइटी एंड दीज में बी पब्लिश्ड or unpublished form. It can be in the published form or it can be in the unpublished form. These data should be carefully used. तो secondary data को हम लोग को काफ़ी carefully use करना होता है. Now how can we present the data? So presentation of data में सबसे पहले है raw data क्या होता है. So raw data हम लोग का basically raw word जो होता है वो क्या होता है, uncooked, है ना. तो अनकुक्ड का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम इस डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, जिस फॉर्म में ये आपको मिला है आपने उसी फॉर्म में इस पे इंफॉर्मेशन अपनी यूज़ करी है. दैट इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा. सो व्हेन द डेटा इज कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म एंड ऑर्डर इन विच इट इज़ कलेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा. नाउ नेक्स्ट इज what is range. So range is basically the difference between the highest and the lowest value in the data. Suppose we are having a data of a class that represent the marks of 10 students. I must say that the marks of the 5 students in the class in the mathematics test. So the marks are as follow, that 15, 20, 14, 12 and 10. These are the marks of the 5 students of the class in the data, and what we have to find, we have to find the range of this data. So to students find the range, what we have to do, we have to just subtract the highest value, that is 20, from the lowest one, that is 10. So to subtract the lowest value from the highest one, that is 20 minus 10, the range would be equivalent to 10. So that is how we can find the range of the data. Now next we have to learn that what is the frequency. So students, frequency is basically the number which tells that how many times a particular data appear in a given set of data. कि एक डेटा में कितनी टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं. जैसे कि प्रीवियस डेटा हमने देखा, तो प्रीवियस डेटा में क्या था कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जिसमें से कोई भी मार्क्स हम लोग के रिपीट नहीं हो रहे थे. बट कुछ डेटा हम लोग का ऐसा होता है जिसमें कि मार्क्स हम लोग के रिपीट हो सकते हैं, है ना. 20 मार्क्स अगर एक स्टूडेंट के हैं तो 20 मार्क्स किसी और स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं. सो बेसिकली कितनी बार हम लोग का एक डेटा रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डेटा. नेक्स्ट हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूट हो जाना फ्रीक्वेंसी का इन अ टेबुलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डेटा शोइंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम किसी डेटा को एक टेबल में अरेंज कर लें और हर डेटा की फ्रीक्वेंसी को हम डिपिक्ट करें, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले अनग्रुप जो देखा मैंने आपको एग्जांपल दिया अनग्रुप का, जिसमें कि मैंने आपको 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करा, दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा में हम लोग एग्जांपल कंसिडर करते हैं. सपोज वी आर हैविंग 100 प्लांट्स एंड ईच वर प्लांटेड इन द 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव. 100 प्लांट्स हम लोगों ने प्लांट करने 100 स्कूल्स में, ठीक है, एंड वन महोत्सव है तो उसमें हम लोग को हर 100 स्कूल में 100 प्लांट्स वो कर रहे हैं, तो जिसमें से कितने सर्वाइव कर पाए हैं 1 मंथ में, इसका रिकॉर्ड हम लोग का मेंटेन रही है. सो एज यू कैन सी दिस इज द डेटा ऑफ द 100 प्लांट्स ऑफ द 100 स्कूल. सो दिस कैन बी अ वेरी लार्ज डेटा. तो ऐसे डेटा के साथ डील करने के लिए, टू रिप्रेजेंट सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सो दैट द रीडर कैन मेक अ सेंस ऑफ इट ईजिली डेटा को समझ पाए रीडर, वी यूज द
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम यूज़ करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक हम क्या करेंगे, हम लोग रेंज बना देंगे कि कितने नंबर ऑफ प्लांट, मतलब 20 से 29 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने स्कूल में सर्वाइव किए हैं, तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहाँ पे सामने, ठीक है। सिमिलरली फिर हम देखेंगे 30 से 39 प्लांट्स कितने स्कूल में सर्वाइव किए हैं, तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख देंगे। दैट वुड गिव अस अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंप्लीट डेटा। सो देखिए इस तरीके से हम इसका ग्रुपिज्म कर सकते हैं, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दी गई है। द डेटा अबव कैन बी कंसिडर्ड इन द टेबुलर फॉर्म एज 20 से 29 टेली मार्क्स में देखा जाए तो 3 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 स्कूल्स की है। टेली मार्क्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी इन द टेली फॉर्मेट, या आपको टेली फॉर्मेट में आपको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यू ऑल नो दैट हाउ वी कैन राइट द टेली मार्क्स फॉर ईच ऑफ दैम। सपोज कीजिए हमें 8 का रिप्रेजेंट करना है, सो फर्स्ट वी नीड टू मार्क द 5। फर्स्ट 5 हम कैसे दिखाएंगे, 4 बार्स एंड देन 1 क्रॉस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 5, एंड आफ्टर दिस 6, 7 एंड 8, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8 फ्रीक्वेंसी यूजिंग द टेली मार्क्स। सो ये हम लोग का एक टेबुलर फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसे हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ डेटा। सो दिस इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन ईच क्लास यू कैन सी द लीस्ट नंबर इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। हर क्लास में हम लोग का जो छोटा नंबर है दैट इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दैट क्लास, this one 60 to 69, here you can see that 60 is the lower class limit of this class and 69 is the upper class limit. This is the lower class limit, lower limit I can say, and this is the upper limit. Okay, so हर क्लास की upper limit and lower limit होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासेस क्या होती है या क्लास इंटरवल क्या होता है। जिस तरीके से हमने अपने डेटा को ग्रुप किया है उसे हम क्लास कह देते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप जो हमारा बना था वो 20 to 29 का था, तो ये हम लोग की फर्स्ट क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास थी हम लोग की 30 to 39, तो ये हम लोग की सेकंड क्लास हो गई। तो क्लासेस बेसिकली क्या होती है, जो आप ग्रुप बना रहे हैं जिन डेटा का, उन्हें हम लोग क्लासेस कह देते हैं या क्लास इंटरवल कह सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट हम लोग का है क्लास मार्क क्या होता है। बेटा क्लास मार्क बेसिकली किसी क्लास का मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। एंड कैसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट क्लास मार्क, वी कैन फाइंड द क्लास मार्क with finding the mean of the upper limit and lower limit, ठीक है। हम एवरेज निकालते हैं बेसिकली या मिड वैल्यू निकालते हैं। एंड टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास मार्क व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड द अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट आई कैन से, विद द लोअर क्लास लिमिट, एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. So this is the formula for finding the class mark. Class mark is the midpoint of a class and it can be find as upper class limit plus lower class limit upon 2. This is the formula for class mark. नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग का आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ डेटा ग्राफिकली। सो किसी भी डेटा को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग के पास कुछ वेज हैं स्टूडेंट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू डायग्राम्स हेल्प अस टू विजुअलाइज द होल मीनिंग ऑफ द न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एट अ सिंगल ग्लांस। हम एक बारी में देख के ही समझ जाते हैं कि इस डेटा में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। दैट्स वाई वी यूज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द बार ग्राफ, बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम एंड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं या 3 हम लोग के पास ग्राफ हैं जिसके थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा की। सो फर्स्ट वन जो हम लोग का बार ग्राफ है, बार ग्राफ आप पहले भी यूज कर चुके हैं। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज ग्राफ इन विच द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, या फिर कह सकते हैं रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड्थ। हम लोग के यहाँ पे क्या होते हैं, बार्स होते हैं इक्वल विड्थ के, जिसमें कि हम लोग अपने डेटा को अलाइन करते हैं। विड्थ हमेशा उन बार्स की क्या होती है, इक्वल होती है। द विड्थ ऑफ ईच बार कैन बी एनी बट विड्थ ऑफ ऑल द बार्स शुड बी सेम। सभी बार्स की जो विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग के जो स्पेस होता है कॉन्जिक्यूटिव बार्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच में जो स्पेस है वो भी सेम होना चाहिए। एंड हाइट बेसिकली हमारी ये रिप्रेजेंट करती है कि उस डेटा की कितनी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हम लोग का है हिस्टोग्राम स्टूडेंट। हिस्टोग्राम बेसिकली अभी मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगी किस तरीके से बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम कैसे होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। सो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग रेक्टेंगल्स भी इसमें हम यूज करते हैं, बट द रेक्टेंगल्स आर वन आफ्टर द अनदर। एक के बाद एक रेक्टेंगल होता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स। बार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है।
द बेसिस ऑफ द रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल ऑफ द क्लास बाउंड्री। ये बेस हम लोग का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्लास बाउंड्रीज का, तो इस वजह से हम इनको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग का है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहे तो दो तरीके से हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। हम चाहे तो फर्स्ट हम उसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे, एंड हिस्टोग्राम के बाद हम उसकी मिड वैल्यू निकाल देंगे उस क्लास इंटरवल की, एंड देन वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर ईच। हम देख सकते हैं आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाएंगे। चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि बार ग्राफ कैसा होता है। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एज इन ईयर्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। कि सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले कि 8 ईयर्स के कितने पीपल है हम लोग के पास। यू कैन से दैट ये अप्रॉक्सीमेटली 10 बोल सकते हैं, या 10 के बाद 11 हम ले लेंगे, तो 11 हम लोग के पीपल हैं जो कि 8 ईयर्स के हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द 9, फॉर 10, फॉर 11, फॉर 12। यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स आर सेम इन ऑल द बार्स। दो बार्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम है। ठीक है, और डिस्टेंस होना भी, गैप होना भी कंपलसरी है इन केस ऑफ द बार ग्राफ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हिस्टोग्राम कैसा होता है। तो हिस्टोग्राम में आपको दिख रहा है देयर इज नो स्पेस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड ये हिस्टोग्राम बेसिकली हम लोग को मार्क्स डिपिक्ट कर रहा है, मार्क्स इन अ टेस्ट। सो 20 से 30 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली 30 to 40 जो है वो 4 स्टूडेंट है। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड फॉर ईच। आप सबके लिए इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो हिस्टोग्राम बेसिकली हम डेटा जो हम लोग का ग्रुप फॉर्मेट में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि हिस्टोग्राम में अगर सपोज कर लीजिए कि हम लोग का जो डेटा है वो स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी हैव टू पुट द कर्व्ड लाइन। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस में कर्व लाइन देनी पड़ती है। दिस कर्व लाइन रिप्रेजेंटिंग दैट देयर इज सम गैप बिटवीन द फर्स्ट बार एंड द वाई एक्सिस। ये बार के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में हम लोग का गैप रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फर्स्ट हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ करा हुआ है, एंड ड्रॉ करने के बाद हमने हर बार की एक मिड वैल्यू फाइंड की हुई है, और उन मिड वैल्यू के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया है, सिंपली ज्वाइन कर दिया है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इजीली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग की क्लास है उसके हम लोग क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे, मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड देन हम उन मिड वैल्यूज को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंगली आप उनकी मिड वैल्यूज को ज्वाइन करेंगे, देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है द मिड वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज जॉइन टू द मिड वैल्यू ऑफ द अर्लियर इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस। कंपलसरी है स्टूडेंट की फर्स्ट जो हम लोग का ये है इसे आप ज्वाइन करें नीचे एक्स एक्सिस से, एंड लास्ट वाले को भी हम ज्वाइन करें एक्स एक्सिस से, तभी हम लोग का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट होता है। ठीक है, बोथ द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर टू बी ड्रॉन। अगर आपको एक साथ दोनों ड्रॉ करने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दिस इज एडवाइजेबल फर्स्ट टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड देन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम टू गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप क्या करेंगे, उनके जो मिडिल पॉइंट है या मिड पॉइंट कह सकते हैं या फिर क्लास मार्क कह दीजिए, उनको आप ज्वाइन कर दीजिए और यू विल गेट इजिली द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट इफ ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज टू बी ड्रॉन, बट अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्लास मार्क along the x axis and frequency along the y axis, and then plot the corresponding to the frequency at each class mark। आपको हर क्लास मार्क को then ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट, है ना, हम लोग को मिड पॉइंट चाहिए होगा क्लास इंटरवल का। द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली। नेक्स्ट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं किस तरीके से हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो करा हुआ है। ये जो हिस्टोग्राम है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसने 2 बार्स एक साथ ले लिए हैं। तो हिस्टोग्राम ज़रूरी नहीं है कि बार्स जो है हम लोग की इक्वल विड्थ की हों। ठीक है, जैसे कि बार ग्राफ में हम लोग के जो बार्स होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, तो कंपलसरी नहीं है हिस्टोग्राम में हम लोग के बार्स इक्वल विड्थ के हों। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बच्चे आपको दिख ही रहा है कि हम लोगों ने सिंपली क्या किया हुआ है, जो क्लास मार्क है उन लोग को ज्वाइन किया हुआ है। इसे हम और अच्छे से समझ सकेंगे जब हम इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके,
नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमें बताता है एवरेज के बारे में। सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी स्टूडेंट्स हम 3 मीन्स से फाइंड कर सकते हैं, 3 वेज से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो ये जो फर्स्ट है हम लोग को ये डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड करेंगे। सो मीन भी हम लोग के लिए 2 हम लोग के पास वेज है, या कह सकते हैं 2 हम लोग के पास ऑप्शंस हैं कि अगर हम लोग का डेटा ग्रुप आता है, ग्रुप डेटा आता है या फिर अनग्रुप डेटा आता है तो कैसे हम लोग मीन फाइंड करेंगे। सो दिस वन इज द अनग्रुप डेटा है हम लोग के पास। इट इज़ द मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय द 5 स्टूडेंट्स। ये 5 स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये हम लोग को डिपिक्ट कर रहा है। सो फॉर दैट केस हम लोग क्या करेंगे, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड द एवरेज ऑल्सो। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इन दैट केस स्टूडेंट अगर हम लोग को मीन फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 40 प्लस 67 प्लस 33 plus 60 and plus 80 and the whole term is divided by completely 5. Okay, you just need to find the sum of all these term and then you have to divide it by the 5. तो इस तरीके से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपको हर एक की गिवन है, लाइक सपोज कीजिए मार्क्स है 30 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए हैं, तो इस तरीके का अगर डेटा है हम लोग के पास कि अगर हम लोग को काफ़ी अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग का काफ़ी बड़ा है तो उस केस में हम इस टाइप से मीन निकालेंगे। 40 मार्क्स हम लोग के 3 स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, 50 मार्क्स हम लोग के 3 स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, 60 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं एंड 70 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है। तो इस तरीके के डेटा के लिए हम लोग मीन फाइंड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। यू कैन सी दैट मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन, समेशन मतलब सम। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को हम लोग xi रिप्रेजेंट कर देंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी fi से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द fi xi फॉर ईच ऑफ देम। सो आप देख रहे हैं 30 into 1 fi xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मार्क्स। आपको इंडिविजुअली हर किसी का फाइंड करना है। सो 30 into 1 will lead us to 30, 40 into 3 will lead us to 120, similarly 50 into 3 150, 60 into 2 120, 70 into 170। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है x बार इक्वल टू दैट इज मीन इक्वल टू समेशन fi xi। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। हम लोग को कंप्लीट टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। एंड सम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सबको ऐड करके। जब आप इन्हें ऐड करेंगे व्हाट यू विल गेट 490। एंड सिमिलरली हम लोग को डिनोमिनेटर में चाहिए समेशन fi, तो हम लोग सारे fi जो हैं, ठीक है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी इन सबका सम कर देंगे, दैट्स हाउ वी गेट summation fi. Now what we have to do to find the mean, what we have to do, we have to just find the summation fi xi upon summation fi. So what we need to do, we need to just divide 490 by 10 and we will get 49 as our mean. Okay, this is the mean for the data if the data is very large। अगर डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज आता है तो हम लोग उस केस में इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडियन। नाउ मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग 3 टाइप्स से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मीन निकाल के, मैंने मीन आपको बताया कैसे हम निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मीडियन हम लोग का अगेन 2 केसेस है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग की ऑड है तो उस केस में हम लोग का फॉर्मूला है ऑड टर्म्स के लिए मीडियन का n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। एंड अगर हम लोग की नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है, टर्म्स से मेरा मतलब है डेटा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 7 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो इस केस में हम लोग का क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग की कितनी आ गई, n हम लोग का क्या बन गया, 7 बन गया एंड 7 इज एन ऑड नंबर। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट अगर डेटा हम लोग का 8 स्टूडेंट्स का होता तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th होल अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। First, what we need to do to find the median is to arrange the data or to sort the data in ascending or descending order। तो सबसे पहले काम तो हम लोग का यही है कि हम लोग क्या करेंगे, डेटा को
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एंड मीडियन बेसिकली हम लोग को वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन देता है, बट पहले हम लोग को डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी आर जस्ट अरेंजिंग आवर डेटा। सो द फर्स्ट टर्म विल बी 33, आफ्टर दैट द डेटा इज 40, देन आफ्टर वी विल हैव 60, then 67, then 70, then 80, and then last is 100. That's how we arrange our data in the ascending order, isn't? Now what we have to do, we just need to find the median, and the formula for the median in case of the odd number of terms is n plus 1th upon 2th observation. So n plus 1, you know that n number of terms कितनी हम लोग की 7. So 7 plus 1 अगर हम फाइंड करेंगे, 7 plus 1 कितना होगा 8, 8 upon 2 will lead us to 4th. तो हम लोग का आंसर आ गया 4th ऑब्जर्वेशन, है ना। मीडियन हम लोग का क्या बन गया 4th ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग अपने अरेंज हुए हुए डेटा में 4th ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेंगे। देखिए 4th कौन सी है, 1 2 3 एंड देन 4th हम लोग की क्या हो गई है 67। सो बेसिकली मीडियन क्या आ गया हम लोग का 67। ध्यान रखेंगे काफ़ी बच्चे यहाँ 4 पे ही ला के आंसर हम लोग का छोड़ देते हैं, बट द आंसर इज द 4th ऑब्जर्वेशन। तो पहले जो 4th ऑब्जर्वेशन है वो सर्च करनी है हम लोग को अपने अरेंज हुए हुए डेटा में। सो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है 67 है। स्टूडेंट्स सिमिलरली फॉर द इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीट अपॉन 2। तो उस केस में हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जस्ट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू राइट द फॉर्मूला समवेयर दैट मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इज n plus 1 upon 2th observation, and for the even number of terms is n upon 2th plus n upon 2 plus 1th whole upon 2th observation. So this will be the median. Now last topic is the mode. Student, mode basically tell us that what is the most occurring observation. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग की जो आ रही होती है वो उस डेटा का मोड बन जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा जो होता है वो हम लोग का मोड होता है। लाइक अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डेटा में सबसे ज़्यादा जो अकर कर रहा है वो कौन सा है 60, है ना। 60 हम लोग का 3 टाइम्स अकर कर रहा है। सो ईजिली हम लोग का मोड हम कह सकते हैं मोड विल बी इक्वल टू 60 बिकॉज 60 इज द मोस्ट frequently occurring data. Okay, that's how we can calculate the mode. Now in this video students we can do just this is enough for this class. That's all for today students. In the next video we will continue with chapter number 14 from the NCERT. Thank you so much.